Good Good morning, morning, sir. sir. Please on your video, everyone. Turn on your video, everyone. My dear students, you are a good boy. Everyone, girls and boys, both are you good. So turn on your video. Chandan, you are not doing. Yes. Chandan, you are not doing. Om, Sasmita Mahapatra, you are also not doing. Sasmita, Himanshu Lahia, you are not doing. Please do it. Ankit Yadav. My dear students, today we shall learn the chapter The Bond of Love. Basically, this is about the animal. You will see in this story how the writer have explained the importance of animals. Animals are also as a human being. They also have feelings. So how the writer is taking care of animals, you will see in this story. It is about a baby bear. Once when the writer was going for a tour, on the way he found how a bear baby is lying over his mother. Since his mother has been shot out, so the baby bear was lying on the body of her mother. So the writer got it and he is taking it in his home, carrying him like as other animals. Already he has two Alsatian dogs in his home since he was very fond of animal. So what the love he was giving to Alsatian dog, the same love is going to be here for a baby bear. Not only baby bear, entire the community, they all love to bear baby and Alsatian dogs. He loves him like as his own son. So through this story, the writer have tried to make us understand we must love the animal because animals are also a human being and they all are friend of our society. They are very useful for each and everyone. So we must take care about it. So today we'll see it in detail. Now here I am going to share the screen. Please let us see what the story is. Please wait my children. The bond of love. The bond of love means care of animals. What is the bond of love between the writer and the animals? How much he is loving to this baby bear. So let us see the story how he got it, from where he got it in this. So let us see from the beginning how he get it. कहाँ से वो उन्हें मिला, कैसे मिला? So let's see it. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. Means suddenly. I will begin with Bruno. Bruno is the name of a baby bear. Here, Bruno is the name of a baby bear. My wife's pet sloth bear. It became my wife's pet. When I gave her, she took care of Bruno. Here, Bruno is a baby bear. जो बेबी बियर है, भालू का जो बच्चा है, उसका नाम ब्रूनो है. और क्या है, ये मेरे वाइफ के लिए पेट है. मेरे वाइफ ने इसे अच्छी तरह से पाला है. I got him for her
बाय एक्सीडेंट। मैंने अपने पत्नी के लिए इसे पाया कहां से? एक्सीडेंट से। कैसे एक्सीडेंट से पाया? लेट अस सी द स्टोरी। 2 years ago we were passing through the sugarcane field near Mysore. People were driving away all the wild pigs from the field by shooting at them. Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. 2 years ago, ये 2 साल पहले की कहानी है। आज तो उनकी पत्नी के पास वो पेट के रूप में है, अपनी पत्नी को उन्होंने दिया है, बट ये अब कहानी हमें बता रहे हैं कि कैसे ये जो है पेट उन्हें मिला है। 2 years ago, we were passing through the sugarcane field near मैसूर। 2 साल पहले वे मैसूर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में एक शुगर केन का खेत मिला। जाते समय रास्ते में शुगर केन, आप पता ही है शुगर केन के बारे में, तो पता ही है शुगर केन होता क्या है। Yes, तो sir. चूंकि इन द फील्ड, यह चूंकि फील्ड में होता है, किसान पैदा करते हैं, तो मैसूर जो कि कर्नाटक में है, मैसूर के जो है रास्ते से जो है लेखक जा रहे थे। आज से 2 साल पहले की कहानी है। तो उन्होंने देखा रास्ते में पीपल वे ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट देम। लोग जो है वहां के लोग अपने खेतों से जो पिग्स होते हैं, सुअर जिसे बोलते हैं आप, उसे अपने खेतों से मार करके शूटिंग करके बाहर निकाल रहे थे। यदि आप गांव से होकर बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा जो पिग्स है ना, वो खेत में हेल करके जा करके और जितने शुगर केन के जो स्मॉल प्लांट होते हैं उससे वो बर्बाद कर देते हैं। तो हो सकता है वहां मैसूर में ये जितने पिग्स है वो सब खेतों को बर्बाद कर रहे होंगे, तो किसान जो है गुस्से में आ गए होंगे और इस प्रकार वो सबको जो है खेतों से बाहर निकाल रहे थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? शूटिंग करना शुरू कर दिया। उनके पास गन होगा, उससे वो शूट कर रहे होंगे और इस प्रकार वो सब भाग जाते होंगे उनकी आवाजों को सुन करके। कितने लोग तो यह मारे भी जाते हैं, बट मैक्सिमम किसानों का एक उद्देश्य होता है उन्हें आवाज करके खेतों से बाहर निकालना। उनका मेन मकसद मारना तो नहीं होता है, बट ये है उनका मकसद कि उसके जो साउंड होते हैं, गन के जो साउंड होते हैं, उसे सुनकर वो जो है पीक शायद खेत से बाहर निकल जाए। That everything was over, then suddenly सब कुछ जो है जब समाप्त हो गया, सारे पिग्स भाग गए, तो अचानक that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun। अचानक एक स्लॉथ बियर मतलब बेबी बियर सामने में आकर के रोड पर, पैंटिंग मीन्स होता है क्विक बर्थ, क्विक बर्थ मीन्स होता है हांफना, जिसे हांफते हुए एक जो है बेबी बियर उनके पास आकर के सामने रोड पर जो है वो दिखाई पड़ी, जो हाफ रही थी। क्यों? इन द हॉट सन, सिंस इट वाज द सन, हॉट सन, तो दैट्स वाई शी वाज टेकिंग अ क्विक बर्थ। उसके दम फूल रहे थे, तेज धूप थी, इसलिए वह हाँफ रही थी। वो उस समय क्या था? स्लॉथ बियर है यहाँ पर, ये जो है मेन वाला बियर है, बड़ा बियर। तो नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions didn't feel that way about it and promptly shoot the bear on the spot. Now I will not shoot a sloth bear. मैंने मन में सोच लिया कि मैं इस बियर को नहीं शूट करूंगा। Now I will not shoot a sloth bear wantonly. Wantonly means होते हैं for no good reason, because there was no valid reason for killing it। कोई कारण तो नहीं था, आप बेवजह कोई किसी को जान क्यों मारे? तो राइटर Sir, ने wanton. कहा, हाँ, वांटलनी मतलब होते हैं फॉर नो गुड रीजन, नो वैलिड रीजन। इट्स क्लियर मीनिंग।
यस सर। नॉट वैलिड ए रीजन, कोई रीजन नहीं था वैलिड, कोई कारण होगा तब तो हम मारेंगे। तो राइटर कह रहे हैं नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वांटनली, वांटनली मतलब विदाउट एनी वैलिड रीजन, बट लेकिन दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट वन ऑफ माय कंपेनियंस डिड नॉट फील दैट, लेकिन दुर्भाग्य की बात है मेरे साथ यात्रा करने वाला एक जो मेरा दोस्त था वो ऐसा फील नहीं किया जैसा मैंने फील किया अबाउट इट, एंड क्या हुआ, प्रॉम्प्टली शूट द बियर ऑन द स्पॉट, और वो जो है वहीं पर ऑन द स्पॉट जो है उसने शूट कर दिया तेजी से, प्रॉम्प्टली मतलब बिना सोचे समझे वो उसे शूट कर दिया। मैं तो नहीं चाहता था क्योंकि देयर वाज नो वैलिड रीजन बिहाइंड इट, सो आई डिडंट, बट वन ऑफ माय कंपेनियंस शूट इट, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरे साथ यात्रा करने वाला एक दोस्त जो है उसे शूट कर दिया। एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. Here prostrate means होते हैं lying on the ground. Remember it. Prostrate. Prostrate means होते हैं lying on the ground. जमीन पर लेटा हुआ है, ग्राउंड पे है ना यहाँ पर। तो क्या हुआ, वो तो गिर गया, वो जो है बियर है बड़ा वाला वो तो गिर गया, लेकिन उसके बैक पर जो ऊपर वाला भाग है वहां पर कुछ चलते हुए दिखाई पड़ रहा था अभी भी। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द पोस्टेड बॉडी, वो जो डेड बॉडी था उसके ऊपर कोई जो है काले रंग का फर दिखाई पड़ा जो चलते हुए दिखाई पड़ा। देन वी सॉ इट वाज अ baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shoot had killed her. जब हम लोगों ने देखा we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shoot had killed her. हमने देखा ये जो अचानक हमने इसे मार गिराया उसके बॉडी के ऊपर, अपने माँ के बॉडी के ऊपर ये जो बेबी है उसके ऊपर वो बैठा हुआ है। द लिटिल क्रीचर रैन अराउंड इट्स पोस्ट्रेट पेरेंट्स मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज, और क्या कर रहा था, पिटीफुल नॉइज माने दर्द से उसकी आवाज आ रही थी। मतलब उसकी मम्मी लेटी हुई है तो बच्चा क्या कर रहा था, वो जो है वहां पर रो रहा था क्योंकि मम्मी उसकी बोल नहीं रही है, और ये बेबी बियर को पता है नहीं कि मेरी मम्मी अब मर गई, अब ये संसार में नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो सोचा कि ये बोल क्यों नहीं रही है, तो वो बेबी बियर जो है आवाज कर रहा है, पिटीफुल नॉइज माने दर्द भरी आवाज है। सर यस सर। सर उसकी मम्मी मर कैसे गई? अभी तो ऊपर आपने पढ़ा सूट लिखा हुआ था अच्छा, उसे मार दिया। कि अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्या सर? सर आवाज नहीं आ रही थी सर अच्छे से, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आपने पढ़ा कि राइटर मारना नहीं चाहता था, राइटर ने नहीं मारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ हिज कंपेनियन माने एक दोस्त जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे उसने उसे मार दिया, राइट। जब मार दिया तो उन्होंने देखा कि ये तो मार दिया फिर भी उसके बॉडी पर ये जो है हरकत कैसे हो रही है, उसका बॉडी हिल रहा है, काले रंग का क्या दिखाई पड़ रहा है बॉडी पर। तो जब पास गए तो पता चला कि उसका बेबी जो है ना उसकी बॉडी पर बैठा हुआ है, हो सकता है उसे लेकर के जा रही होगा बियर उस समय, और चूंकि बंदूक तो दूर से चलते हैं पास से नहीं, तो जो शूट किया तो हो सकता है बेबी उसके साथ भी होगा। अब बेचारा बेबी जो है जब मम्मी वहां रुक गई तो वो भी रुक गया, उसके बॉडी पर चढ़ गया और देखा कि ये मेरी माँ क्यों यहाँ पर लेटी हुई है। अब बेचारा छोटा बच्चा जानवर, उसे क्या पता कि ये सदा के लिए सो गई है। तो जब नजदीक गए, राइटर पास में गए,
तो पता चला कि यह उसका फर नहीं है जो काले रंग का दिखाई पड़ रहा है, बल्कि उसका बेबी है जो बॉडी के ऊपर बैठ करके और आंसू बहा रहा है। पीटीफुल नॉइज, वो जो है एक दर्द भरी आवाज आ रही है। दैट्स क्लियर? क्लियर यस हियर? सर, यस Yes, सर। sir. Okay. Okay. I ran up Yes. to it to attempt a capture. I मतलब राइटर, I ran up to it to attempt a capture. उसे पकड़ने के लिए मैंने उसके तरफ दौड़ा। किसे पकड़ने के लिए? बेबी को। It scooted into the sugarcane field. Scooted, here new word for you children. Scooted मतलब ran away. Scooted means Ran away. Ran away. या ran away. जब मैंने दौड़ा उसे पकड़ने के लिए, इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड, वो फिर जो है ना उसी शुगर केन में जो फील्ड है उसी में वो है भाग गया। फॉलोइंग इट, फॉलोइंग मतलब फॉलो करने लगा मैं, उसके पीछे पीछे मैंने भी शुरू किया। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claw. Finally मैंने उसे पकड़ लिया, उसके गर्दन को पकड़ लिया मैं पीछे से, और जब मैंने उसे पकड़ा तो मेरे को क्या किया? ट्राई टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉ, उसके जो पंजे होते हैं ना भालू के, उससे क्या किया? उसे मुझे स्क्रैच करने का कोशिश किया, स्क्रैच कर दिया। ऑब्वियसली जानवर है, कोई ह्यूमन बीइंग पास में आएगा तो अपने सेफ्टी पर्पस से तो वो कुछ ना कुछ करेगा है। इस प्रकार राइटर को जो है वो स्क्रैच आ गए उनके। we put it in one of the gunny bags. गनी क्या है यहाँ बेटा? जूट का जो बैग होते हैं ना, जूट के बैग, समझते हैं ना, जूट वाली जो बैग होती है। इट्स क्लियर? तो जो जूट का बैग है, कपड़े वाली बैग, गनी बैग मतलब जूट, जूट के कपड़े बनते हैं, जूट मिल होता है। हाँ, तो एक बैग था। We put it in one of the gunny bag we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. और जब मैं वापस बैंगलोर गया तो I duly presented, मैंने पूरी तरह से मैंने इसे प्रेजेंट कर दिया, अपने वाइफ को मैंने इसे प्रेजेंट कर दिया। एक गिफ्ट के रूप में मैंने अपने पत्नी को यह बेबी बियर को दे दिया। She was delighted, मैंने very happy. She was delighted. She was very happy. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. मेरी पत्नी ने क्या किया? तुरंत उसके गले में जो है पट्टा डाल दिया, रिबन अराउंड इट्स नेक, जिसे पट्टा बोलते हैं आप। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज ए बॉय, और पता चला कि यह जो है बॉय है, मतलब ही है, सी नहीं है। क्या है वो? ही है। और इन दिस वे सी केप्ट हिज नेम ब्रूनो, और इस प्रकार मेरी पत्नी ने उसका जो नाम है वो क्या रख दिया? ब्रूनो रख दिया। क्या नाम रख दिया? ब्रूनो। कब ब्रूनो नाम रख दिया? When she found that it is a boy, जब उन्हें पता चला कि ये जो भालू है ना वो गर्ल नहीं है, बॉय है, तब उसने उनका नाम ब्रूनो रख दिया। क्लियर? यस। 6. Bruno soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a very few days, he started eating and drinking everything else. And everything is the
a right word for he ate pori made from any ingredients, vegetables, fruit, nuts, meat, especially pork, curry, rice, regardless of condiments. Condiments means होते हैं spices. सर पोर्क मतलब Condiment, sorry, पोर्क मतलब सर करा कि स्पेशली पोर्क. जैसे आप पे ये समझ लीजिए कि जो शुगर होते हैं ना, हाँ ठीक समझते हैं, यस सर है ना? यस हाँ बेटा, तो वो सब के जो मांस होते हैं ना, जो खाते हैं ना नेपाली लोग, हाँ पता है ना आप लोगों को? यस कुछ सर लोग खा, सभी नहीं, कुछ लोग खाते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि ऑल, है ना? तो वो जो है मांस, है ना, या curry and rice regardless of condiment, and chili, bread, eggs, chocolate, sweets, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish. Relish means Sir. great enjoyment. एरिटेड वाटर मतलब क्या होता है सर? क्या है बेटा? एरिटेड वाटर मतलब कहाँ लिखा हुआ है इसमें? एक मिनट सर रुकिए, लाइम जूस आगे. की सर. हाँ, अगेन आई एम रिपीटिंग. यस सर Yes. Especially pork, curry, and rice, regardless of condiment, and chili, bread, egg, chocolate, sweets, pudding, ice cream, etc., etc., etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, and aerated water. Aerated water मतलब कि वो है जो आप जिसे बोलते हैं जो पानी को क्या करते हैं, प्यूरिफाई. हाँ, प्यूरिफाई करके पीते हैं ना, वही यस है. सर या तो आपने देखा व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग द बियर इज ईटिंग हियर. वी कैन से एवरीथिंग ही लाइक्स टू ईट. सर ये दारू भी लेता था. लिखा हुआ है, लिक्वर लिखा हुआ है, यस सर लिखा है बेटा, लिक्वर लिखा है ना, बियर भी तो लिखा हुआ है, यस सर लिखा हुआ है ना बियर. यस सर देखिए बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिक्वर भी लिखा. लिक्वर तो ही दारू को कहते हैं, यस सर है ना? एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड, लिख तो दिया क्लियर, एनीथिंग लिक्विड, इट ऑल वेंट डाउन विद relish. relish मतलब ग्रेट एंजॉयमेंट. relish मतलब ग्रेट. ग्रेट एंजॉयमेंट. या ऐसा भी नहीं कि पी लिया तो नशा हो गया, झूमने लगा, खूब आनंद पूर्वक पीता था बेटा. नाउ इट्स क्लियर हियर कि हाउ द बियर वाज ना, कैसे वो खाता था. मतलब है कि टू मच, वी कैन से ही वाज ईटिंग टू मच. वो बहुत खाता था बेटा, सब कुछ खा जाता था. उसके पास लाइक और डिसलाइक कुछ भी नहीं थे, पसंद और नापसंद, वो सब कुछ खा लेता था. एवरीथिंग ही वाज ईटिंग. सो नाउ लेट्स सी नंबर 7. The bear became very attached to our two Alsatian dog and to all the children of the tenant living in our bungalow. The bear became very attached to our two Alsatian dog. It means that the writer have two more animal that were the Alsatian dog. Alsatian dog क्या है? एक कुत्ते की ये प्रजाति का नाम है Alsatian, है ना? तो कह रहा है कि उनके पास पहले से 2 कुत्ते थे और ये सभी मिल करके क्या हुए, ये सब जो है दोस्त हो गए. एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टीनेंट, टीनेंट मतलब किराएदार. टीनेंट्स कौन होते हैं? हम सब टीनेंट हैं. किराएदार. हाँ, जो दूसरे के मकान में रह रहे हैं ना बेटा, हम सब क्या हैं? टीनेंट्स हैं. टीनेंट. हाँ, किराए पर जो रहते हैं. ओके, तो जो बच्चे हमारे बंगले में किराए पर रहते थे वो सब जो है ये जो
कुत्ते हैं, भालू है, सब जो है अटैच माने एक दूसरे से मिल करके रहते थे। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. कहाँ कहाँ जाता है, कैसे क्या खेलता है। He was left quite free in his younger days. जब वो छोटा है, क्योंकि वो अभी तो बेबी है ना, तो क्या है, पूरा फ्री है। And spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our bed. इवन की राइटर के जो बेडरूम था वहां पर वो सोता था, किचन में भी दौड़ लगाता था, मैंने हर जगह वो जाना शुरू कर दिया। One day an accident befell him. Here the word has come befell. Befell means happen. Befell means happen. One day an accident happened. क्या एक्सीडेंट हुआ बेटा? Let's see. कोई घटना घट गई अब इनके घर में। I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. Bruno entered the library as he often did and he ate some of the poison. क्या हुआ? एक बार जो है राइटर जो है अपने लाइब्रेरी में जैसे चूहा मारने वाला, बड़े चूहे छोटे चूहे, राइट एंड माइस लिखा हुआ है, माउस से माइस, तो छोटे चूहे बड़े चूहे उसको मारने के लिए लाइब्रेरी में एक दवा रखे थे, उस दवा का नाम है बेरियम कार्बोनेट। बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट क्या है? एक केमिकल है जो कि चूहा मारने के काम आता है। तो लाइब्रेरी में वो रखे थे मारने के लिए, और वहां पर जो है ब्रूनो भी जाता था। तो क्या हुआ, एक दिन वो एंटर कर गया और उसे खा लिया। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, उसमें से कुछ पॉइजन जो है वो खा लिया। पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और रिजल्ट क्या हुआ, उसे पैरालिसिस अटैक कर गया। पैरालिसिस समझते हैं ना बेटा? जो हमारा नर्व सिस्टम है ना, वो काम करना बंद कर देता है, वन साइडेड, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो। हमारे ब्रेन को जो है ना वो नर्व सिस्टम को डैमेज कर देता है। रिजल्ट ये हुआ कि वह जो ब्रूनो है अब वो खड़ा नहीं हो सकता था। पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, अब वो अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो सकता है क्योंकि वो पैरालिसिस से अटैक कर गया, तो कहां से खड़ा होगा वो। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माय वाइफ, लेकिन वह घसीटते हुए, ड्रैग कर रहा है, वह घसीटते हुए अपने पैरों पर, स्टंप मतलब लेग्स, हेयर स्टंप्स, स्टंप्स मींस लेग्स, वो अपने पैरों को घसीटते हुए मेरे पत्नी के पास पहुंचा। अब वो चल तो नहीं सकता था, लेकिन क्या किया, वो क्या किया कि अपने पैरों को रगड़ते हुए, ड्रैगिंग करते हुए पैर को वो पहुंच गया मेरे वाइफ के पास। हु कॉल्ड मी, मेरी पत्नी ने मेरे को बुलाई। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, मैंने देखकर अंदाजा लगा लिया कि क्या हो गया। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, मैं कार में बैठा और मैं कहाँ गया, वेट्स रेजिडेंस। वेट मतलब वेटनरी डॉक्टर, यहाँ वेट लिखा हुआ शॉर्ट में VET, वेट्स। वेट्स मतलब होता है वेटनरी डॉक्टर, वेटनरी मतलब जानवरों के डॉक्टर। वेट्स रेजिडेंस, जो डॉक्टरों के जो जानवर के जो डॉक्टर होते हैं ना उनको वेटनरी कहते हैं, वेटनरी डॉक्टर। तो मैं उनके घर गया भागे भागे कार में बैठ करके। अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम्बियर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, ये जा करके उन्होंने कहा अ केस ऑफ पॉइजनिंग। राइटर ने कहा कि केस है, पॉइजन का केस है। टेम बियर, यह जो पेट बियर है, टेम मैंने पालना होता है मतलब पेट, पेट बियर ने पॉइजन ले लिया है। कौन सा पॉइजन, बेरियम कार्बोनेट। व्हाट टू डू, अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, ये जो मेरा पेट है उसने पॉइजन कर लिखा लिया है,
अब मुझे क्या करना है? Out came his medical books and a feverish reference to index began. डॉक्टर ने क्या पता है बेटा? डॉक्टर ने क्या रेफरेंस बुक निकाला पहले, क्योंकि वह जो है बीमारी को देखने के लिए ठीक से उसके पास जो मेडिकल डॉक्टर के पास जो बुक्स होती है ना, वो एक बुक निकालता है. आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, वो अपने किताब निकाल लिया एक. एंड ए फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगैन, और उसमें इंडेक्स में वो चेक करने लगा कि ये जो दवा है बेरियम कार्बोनेट, इसके खाने से कौन सा सिम्टम है और उसमें कौन सी दवा जो है यूजफुल होगा, वो डॉक्टर साहब जो है एक बुक में देखने लगे, किताब में ठीक से देखने लगे. व्हाट पॉइजन डिड यू सी? क्या आपने नाम लिया? सर बेरियम कार्बोनेट. यस. बी बेरियम सॉल्ट. बेरियम कार्बोनेट. सिम्टम पैरालाइसिस. मतलब ये बुक में देख के सब पढ़ रहे हैं कि बी से बेरियम, क्योंकि हमें बेरियम खोजना है तो बी लेटर पर जाना होगा. उन्होंने बेरियम खोज लिया, बेरियम सॉल्ट खोज लिया, तब मिल गया, और मिलने के बाद उन्होंने कहा सिम्टम पैरालाइसिस. इसका सिम्टम ही है कि पैरालाइसिस हो जाता है. जो भी बेरियम कार्बोनेट, बेरियम सॉल्ट खा लेता है उससे ये बीमारी जरूर हो जाएगा. ट्रीटमेंट इंजेक्शन, और उन्होंने उस बुक में देखा ट्रीटमेंट क्या लिखा हुआ था, इंजेक्शन पड़ेगा. अब जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन. अभी मैं अपना इंजेक्शन लेकर के और दवा लेकर के आता हूं. तो यू सा हाउ हियर veterinary doctor found the symptoms and the injection what it required for this paralysis attack. So now he is going to bring injection and medicine because he concluded that I have to give this injection. तो अपना वो इंजेक्शन लाने जा रहे हैं और दवा लाने के लिए जा रहे हैं. A dash back to the car. A dash move. Dash means move. A move back to the car. Bruno still floundering. Floundering is given here. Floundering means struggling to move. अभी भी जो है स्ट्रगल कर रहा है वो कुत्ता. वो कार की तरफ पीछे गए क्योंकि कुत्ता तो कार में था अभी. सॉरी, भालू तो कार में था अभी, ब्रूनो तो उसे लाना था. तो स्टिल फ्लैंडरिंग, फ्लैंडरिंग गिवन हियर स्ट्रगलिंग टू मूव. अभी भी स्ट्रगल कर रहा था, मतलब मूव नहीं कर रहा था उतने अच्छी तरह से. अबाउट ऑन हिज स्टंप, स्टंप मतलब लेग्स, बट क्लियरली वीकेनिंग रैपिडली. लेकिन यह क्लियर था कि वो तेजी से वीक हो रहा था. वो बियर क्या था? वीकेनिंग रैपिडली, माने तेजी से वो जो है कमजोर हो रहा था. सम वोमिटिंग, उससे वोमिटिंग भी हो रहे थे. हैवी ब्रेथिंग, सांसें फूल रही थी. विद हैविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, उसके मुंह जो है ना, उसे मुंह से झाग आ रहे थे, वह मुंह जो है बंद नहीं कर पा रहा था, सांसें तेज हो गई थी. ये सारे जो है उसके साथ हैपनिंग हो गया, ये सारे स्टार्ट हो गए क्योंकि जैसे जैसे देर हो रहा था ये बीमारी जो है उसे डेवलप हो रही थी, बढ़ रही थी. होल्ड हिम, पकड़ो. एवरीबडी इन गोज द हाइपोडेमिक. यहाँ हाइपोडेमिक क्या है? हाइपोडेमिक है लॉन्ग इंजेक्शन, वो बड़ा बड़ा सुइया पड़ेगा इसको. हाइपोडेमिक होते हैं बेटा लॉन्ग इंजेक्शन, क्योंकि यह जो है पॉइजन की बात है ना. अब पॉइजन को जो है रिलीज करने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए अब उस बियर को बहुत बड़े बड़े इंजेक्शन देने पड़ेंगे, उसी कहते हैं हाइपोडेमिक, है ना. ब्रूनो स्क्वेल 10 cc of the antidote enter his system without a drop being wasted.
एंटीडॉट। एंटीडॉट क्या होते हैं? जैसे आप जो है एंटीबायोटिक दवा सुने होंगे। एंटीबायोटिक दवा होते हैं ना, जो बीमारी को, Yes, sir. जो वायरस, जो समय शरीर में वायरस हो जाते हैं, उससे लड़ने की ताकत के लिए डॉक्टर क्या है, कुछ तो है बीमारी की दवा लिखता है और कुछ एंटीबायोटिक लिखता है। तो वही एंटीडॉट है यहाँ पर। एंटीडॉट मीन्स होते हैं मेडिसिन फॉर काउंटरएक्ट। काउंटरएक्ट मतलब बीमारी से लड़ने के लिए उसके अपोज में कोई ऐसा चीज दे जिससे उसका जहर समाप्त हो जाए, उसे बोलते हैं एंटीडॉट। क्लियर? या अब उसे Yes, जो sir. है वो अब उसे सुइया दिया जा रहा है यहाँ पर।